Good morning, children. Today we will discuss about chapter 6 Physical and Chemical Changes, class 7 Science. Now let's start. Changes around us. Students, in your daily life, you come across many changes in your surrounding. Okay, sometimes these changes may involve one or sometimes more than one substances. Okay, so here some examples in which sometime one or sometime more than one substances are involved. Dissolving of sugar in water, formation of curd from milk, cooking of food, cutting of piece of paper, stretching of rubber band, melting of ice, melting of wax, boiling of water, rusting of iron, burning of candle, burning of wood, and burning of coal. All these are the types of changes in our surrounding. Okay, students. So we have to study all these changes. So should know the nature of these changes. So we to know the nature of these changes. For that we have to categorize all these things in different groups. Okay. So now let's categorize all these things before study these changes. Okay. First we will categorize all these things. Okay. These are the pictures of some changes. In the first picture you see rust, you see the rusting of iron nail, the burning of wood, burning of paper, the burning of coal, is burning of candle, the melting of wax, it is boiling of water, it is cooking of food. These all are the example of changes. Okay, now we are going to categorize all these changes in different categories. Okay, now we can divide all these change broadly in two main types. Okay, one is physical, one is chemical change. One is physical, one is chemical change. So what do you mean by physical change, student? In physical change there is no new substance is formed. There is no new substance is formed. फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता, नहीं बनता. ओके, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस देर इज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. केमिकल चेंजेस में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है, बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ओके, this is the main difference between physical and chemical changes. Okay, there are some pictures of different changes. See, in this picture, cutting of paper. In this picture, stretching of rubber band, melting of ice, boiling of water, souring of milk, burning of wood, rusting of iron, and this is cooking of food. Okay, these all are the pictures of different type of changes. Now one by one we will discuss about physical and chemical changes. Okay, now first physical change. First we will discuss about physical change. Okay, so physical change is a type of change in which no new substances form. We already discussed. Okay, we already discussed this thing, that no new substance is formed during physical change. Okay, in a physical change, the physical property like shape, size, state, etc. of the substance change. जब भी कभी कोई फिजिकल चेंज होगा तो या तो सब्सटेंस की शेप बदल जाएगी, या उसका साइज बदल जाएगा, या उसकी स्टेट बदल जाएगी. स्टेट मीन्स देर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो इनमें से कोई भी स्टेट में चेंज आ जाएगा. ओके, now just take some examples. कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस. जब भी हम किसी बड़े पेपर के पीस को
छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर में कट करते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज ओनली, मीन्स द डायमेंशन ऑफ द पेपर आर चेंज। पहले वो पेपर बहुत बड़ा था, अब हमने उसे काट काट के छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स डायमेंशंस ऑफ द पेपर चेंज बट स्टिल द पेपर रिमेन सेम। पहले भी वो पेपर ही था, अब भी पेपर है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखा आपने, कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ नहीं बना, ओनली द फिजिकल डायमेंशन उसके चेंज हुए। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस। इन केस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस इज इन सॉलिड फॉर्म एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। आइस सॉलिड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए आप, उसका स्टेट बदल गया। पहले आइस कैसा था, सॉलिड था, बाद में कैसा हो गया, वो लिक्विड हो गया। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, बट कोई भी उसमें चेंज नहीं आया। पहले भी वो वाटर ही था, बाद में भी वो वाटर ही रहा। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो लिक्विड, वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से किस में, वेपर्स में, यानी गैस में। तो वाटर इज चेंज इनटू लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी क्या बदलती है, स्टेट बदलती है। वाटर की स्टेट बदलती है, बट स्टिल वाटर रिमेन्स, स्टिल वाटर सेम रहता है, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ओके। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से उसके डायमेंशन में डिफरेंस आ जाता है, डायमेंशन में फ़र्क आ जाता है। वो पहले छोटा था, अब वो देखिए, अब वो पहले छोटा था, बड़ा हो गया। स्ट्रेच करने से वो बड़ा हो गया, लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्सटेंस बन गया। वो पहले भी आपका रबर बैंड था, एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग भी वो रबर बैंड ही रहा। रिमेन ऑल दीज थिंग्स आर सेम एक्सेप्ट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई हैं, वो भी टाइम बीइंग के लिए बदली हैं। ओके, फॉर सम टाइम ओनली। अब देखिए, सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल। यहाँ पर बात की गई है, वर्ड आया है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल ऐसे चेंज होते हैं जो वापस अपनी उसी पोजीशन में दोबारा आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ चेंजेस की, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। अगर आप देखेंगे, हमने आइस के कुछ पीसेस ले लिए और उनको मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन अगेन वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग दैम। ओके, उस वाटर को हमने फ्रीज करके दोबारा से हमने छोटे छोटे आइस के पीस में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स वाटर, आइस पीस कन्वर्टेड टू वाटर एंड वाटर अगेन कन्वर्टेड टू आइस पीस। इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सेबल चेंज। पहले वाटर से, पहले आइस से वाटर बना, फिर वाटर से फिर आइस बन गया। तो इस टाइप को चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंजेस आर समटाइम रिवर्सिबल ऑल्सो। ओके, कभी कभी फिजिकल चेंज, सभी फिजिकल चेंज नहीं हो सकते, बट कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है। नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज दिस वेपर इनटू लिक्विड ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो an एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आफ्टर स्ट्रेचिंग द फिजिकल डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ द रबर चेंज, रबड़ के डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। और कुछ समय बाद हम अगर रबड़ को अगेन उसी पोजीशन पे छोड़ देते हैं, रबड़ अपनी पुरानी पोजीशंस पे दोबारा आ जाता है। ओके, इट मीन्स ये चेंज कैसा था, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। ओके, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज में हमने दो चीज़ें सीखी यहाँ पर। वन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरा, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप है, साइज है, स्टेट, ये बदलती हैं और सब्सटेंस रिमेन सेम रहता है। सब्सटेंस रिमेन सेम, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। और sometime these physical property change for time being, means these are reversible. Physical changes are reversible also. It means no new substance formed, physical property change only, and they are reversible. These all are the properties of the physical changes. Okay, hope you understand.
नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस। ओके, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। सेम उसके अपोजिट यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड। We also call chemical changes, we can also say chemical reaction. When a chemical change takes place means there is a chemical reaction takes place. जब भी कोई chemical change होता है, we can also say that is a chemical reaction takes place. Okay, there are some examples of chemical change. One is rusting of iron, burning of wood, formation of curd from milk, cooking of food, etc. These are the example of chemical changes. Okay, these आप देखिए जो जितने भी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं, इन केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे बर्निंग ऑफ वुड। जब हम किसी वुड को बर्न करते हैं, आफ्टर बर्निंग इट चेंजेस इनटू ऐश, वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट द ऐश इनटू वुड अगेन। सो these chemical changes are not reversible, these are not reversible. chemical changes reversible नहीं होते। एक बार ये केमिकल चेंज हो जाता है तो दोबारा हम उसको दोबारा उस पोजीशन पर लेकर नहीं आ सकते। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल विल टेक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब भी हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो वंस द कर्ड इज फॉर्म वी कैन नॉट अगेन चेंज कर्ड टू मिल्क, वी कैन नॉट चेंज, मीन्स इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। ये एक ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंज जिसमें एक बार कोई नई चीज़ बनने के बाद उसको हम फर्दर उसकी पहले वाली चीज़ में फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड chemical changes. In chemical changes always new substances are formed, and these changes are irreversible। और ये कैसे होते हैं? irreversible होते हैं। ये रिवर्सेबल नहीं होते, मीन्स irreversible होते हैं। ओके, कुछ और डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होगा तो इस तरीके के चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ये सारे चेंजेस एक साथ किसी भी सब्सटेंस के अंदर नहीं हो सकते, बट कुछ कुछ चेंजेस सब्सटेंसेस में मिलेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। जब भी केमिकल चेंज होगा ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। सेकेंड, हीट और लाइट में बी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके लिए हीट और लाइट भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कर्ड का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कर्ड, जब मिल्क से कर्ड बनता है तो उसको भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व करने के बाद ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो पाता है। ओके, तो यहाँ हीट का क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन हुआ है, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, थर्ड देखते हैं साउंड में भी प्रोड्यूस। थर्ड है साउंड में भी प्रोड्यूस। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर बच्चे फायरवर्क्स या क्रैकर्स को बर्न करते हैं, तो आफ्टर बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स और क्रैकर साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, यानी फायरवर्क चेंज होकर के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट द वेस्ट मटेरियल ऑफ द फायरवर्क वी कैन नॉट फर्दर चेंज इनटू फायरवर्क अगेन। ओके, उस फायरवर्क के जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम दोबारा से फायरवर्क में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कलर चेंज मे टेक्स प्लेस। ओके, कलर चेंज, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। कलर चेंज होने, देखिए आप फूड को भी देखते हैं, कभी कभार हम किसी फूड को देखते हैं तो फूड जब ख़राब हो जाता है उसमें कुछ कलर का चेंज आ जाता है। ओके, जब खाना ख़राब हो जाता है, आप देखिए ब्रेड के ऊपर माउल्स लग जाता है, फंगस लग जाती है, कुछ कलर वेरिएशन आ जाता है ना, तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन द स्मेल में टेक्स प्लेस। अगर हम खाना हमने कंज्यूम किया उसको हम पूरा कंज्यूम नहीं कर पाए और कुछ समय के लिए हमने उसको छोड़ दिया, और आफ्टर सम टाइम 1 डे 2 डे हमने देखा कि इट बिकम स्टील,
वो स्टेल हो गया, सड़ गया, उसमें से फाउल स्मेल आने लगी, वी फील सम फाउल स्मेल आर कमिंग फ्रॉम दैट फूड। ओके, तो मीन्स स्मेल में चेंज आ जाना। ओके, तो दिस इज ऑल्सो हैपन्स इन केमिकल चेंजेस। Gas may be formed. Sometimes different gases may be formed in chemical changes. Okay. So these all are the discussion about physical and chemical changes. Now hope you all understand what is physical change and what is chemical change. Now you can now you can able to categorize all these types of changes. Okay. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you.